In statistics, everything is connected, right? Okay, so now I'm going to explain you how to organize the data, right? So this is the basic of whatever we are going to learn ahead. We will learn how to find out the central value, which is the average. We will learn how to find the variations and skewness, everything. And that all the thing will be done in some table form. So first of all, we need to know when the data is given to us, how we can convert the data into some frequencies table depending on what is the requirement. Okay, now all of you please look carefully and remember one more thing, that from now onward, whenever we have a class, you must have your calculators with you, pencil, scale, and the paper. If not scale, it's okay. You can make the columns without that, but you must have the calculator. Must. All right, because here you will not understand the thing if you will not do the working with me. All right, so please make sure you keep the calculators with you. Okay, the whole thing, so many things have been explained over here, but uh, I am just coming to the point and I will tell you how to form the table. Acha, first important thing is, whenever the data is given to us, there are two major categories. One is we are making or finding the group data or ungrouped data. First, I will talk about ungrouped data. If I have to make the frequency table of the ungrouped data, I'm not making groups, right? So again, do I have many values or just few, 3, 4, 5 values? If I just have few values like less than 10, we never make the frequency table, right? We always make a frequency table when we have more than, like, we can even make frequency table for like 10 values, but it is useless, right? But if the other value, the data is more than 20, around 20 values, 30 values, then the first thing we do is to make the frequency table. So first thing I'm teaching you how to make the frequency table of ungrouped data. In other words, whatever I'm going to teach right now, there is no grouping in it. Okay, grouping part I'm going to do later on. Okay, so here I have given you the following data. Show the mark of 20 students, right? So how many students are here? 20 students. What you have to do, अच्छा, students form into an array of ascending order. Array कहते हैं जिसे ये कॉलम्स कह लो, ठीक है ना, कॉलम्स को आप array बोलते हैं, और फिर सेंडिंग ऑर्डर, इन्होंने सेंडिंग ऑर्डर भी कर दिया है. अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर दैट to write the data in ascending order is not important, is not necessary. If you are doing it, it's easy for you, but that is not an important part. What is the important part is that pick up the minimum and maximum value from the data. Okay, so that is important. Now since they have arranged the data in ascending order, so that's very easy. The minimum is 35, maximum is 54, so they have written here. But if it's not in the arranged form, even then I can pick up easily the minimum value and the maximum value of the data, right? Okay, this is the important thing you need to know. 3, 4, 5 are the extra value, extra information given to you. To make the frequency table, you need to pick up the minimum and the maximum value. Are you clear about it? Okay. Okay, let's see what extra information they have given to you in this PDF. They have find they have found the range. Range is always the difference between the maximum and minimum. 54 minus 35. ये range जो है ना, when we will do the measure of dispersion, ये उसका topic है. मैं उसमें भी आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि क्यों
क्यों हम माइनस करते हैं, हम उसके मैं सब क्यों का बताऊंगी आपको. राइट नाउ यू नीड टू नो कि whenever we are finding the range, we just do the subtraction of maximum with minimum to get कि यहाँ 19 वैल्यूज बता ये रहा है कि जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है 35 से 19 वैल्यूज अहेड तक मेरे पास डेटा मौजूद है. ठीक है, ये रेंज बता रहा है. Then there's a heavy concentration of marks between 40-50. Leave it. This is just his explaining you this thing कि ज़्यादातर 40s में है, 50s में है. कि ये बता रहे टेबल देख के आपको आइडिया का क्या हो रहा है. Majority of the students secured 43 marks because there are 1, 2, 3, 4 students who are getting 43 marks. ये वैसे ज़्यादातर चीज़ें टेबल से नोट की जाती हैं, डेटा टेबल. अभी हम बात क्या कर रहे थे, हाउ टू मेक अ frequency distribution table, right? So right now my concern is how to make a frequency distribution table. Okay, so that is my concern. Uh, and to make the frequency distribution table, I will just find the minimum and maximum value from the given data without arranging it, right? Arrangement is not important. अच्छा, फिर what is the next step? What will you do after writing this? You will, okay, after finding minimum and maximum, I wrote all the possible values. मैं 35 से 54 तक के सारी वैल्यूज नहीं लिखूंगी. आप लिखना चाहें आप लिख लें. There is no harm in it, right? Like if I want to write 35, 36, 37, 38. Can you see 37, 38? It is not here. अगर आप 37, 38 लिखें तो लिख लें. लेकिन एक tedious वर्क है कि आप पूरी 19 की 19 वैल्यूज लिखें. आप वो लिखें which are present in the table. लेकिन अगर आप किसी नंबर को गलती से लिख भी लेंगे which is not in the table, there is no issue. देयर इज नो इशू, राइट? क्योंकि अगर आप अरेंज फॉर्म में नहीं लिखते हैं डेटा, द डेटा इज नॉट इन द सेंडिंग ऑर्डर, सो यू माइट डोंट पिक अप एनी वैल्यू विच इज नॉट हियर, यू माइट पिक अप दैट वैल्यू विच इज नॉट देयर. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 35 से 54 के सारी वैल्यू लिख लें, राइट? इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, वो वैल्यूज लिखी हैं जो यहाँ मौजूद हैं इस टेबल में, जो ऊपर टेबल गुजरा है ना. ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे ज़रा ये नज़र आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको नीचे स्क्रॉल किया हुआ है. मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ, राइट? ओके, आफ्टर राइटिंग दैट हम यहाँ से पिक करते जाएंगे, राइट? और जो पिकिंग का तरीका होता है यहाँ पे, तो भी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ खाली, मैं आपको ये प्रॉपर बताऊँगी कि वो टेली मार्किंग की जाती है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है, 35, 36, 39, 40, 40 आ रहे हैं ना. तो अब 35 को कट किया आपने, 35 को इधर लिख लिया, वन टाइम है. 36 कितने टाइम्स है, 36 जो है वन टाइम है, वन लिखा है. ठीक है, फिर 39 वन टाइम है, 40 इज वन टू, 40 इज टू टाइम्स, राइट? सो व्हाट वी मीन बाय दैट, ये मैं क्या लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग दियर फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है. ठीक है, द वर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मच फ्रीक्वेंटली इट इज अकरिंग. सो फ्रीक्वेंसीज का नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर होता है वो बताता है. सो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, देयर 20 स्टूडेंट्स. सो इफ आई ऐड देम, व्हाट आई विल गेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई विल गेट, 20 स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो क्योंकि इन सबका सम 20 आना चाहिए. अब इस टेबल को देख के हम आंसर मोस्टली करते हैं, विच नंबर इज अकरिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. 5 हाईएस्ट आ रहा है, तो किस नंबर के अगेंस्ट 5 आ रहा है, 43 के आ रहा है. तो इसका मतलब है आ, इसका मतलब जो है वो तो भी आपको आगे पता चलेगा, ये मोड कहलाता है. ठीक है, मोड हो गया, बट मोड अभी हम वर्ड यूज़ नहीं करते, हम ये सिर्फ बोलेंगे. सो 43 इज अकरिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, व्हाट इज रिटन ओवर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर 43 मार्क्स, राइट? सो 43 इज द हाईएस्ट अकरिंग नंबर. समझ आ गई बात?
कि how they have converted into the frequency distribution table, right? Since this is a single value of x, there is no grouping over here, so that is my this is the ungrouped frequency table. There is no grouping in it, right? अच्छा, फिर ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग का क्या मतलब है? ग्रुपिंग का मतलब ये होता है, all right, so this is the grouping, group data. When we write the frequency table in this form, 35 to 38, 39 to 42, when we are writing the group form, that is known as the group data. ठीक है? अब क्यों बना रहे हैं हम ग्रुप? What is the need to make the group, right? आई टेल यू दैट पार्ट लेटर ऑन. पहले ज़रा मैं ये कवर कर लूँ आपके साथ एंड एक्सप्लेन यू कि हम ग्रुप बना क्यों रहे हैं, राइट? क्या ज़रूरत पड़ जाती है ग्रुप बनाने की? अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ग्रुप बनाया कैसे जाता है. व्हाट दे हैव डन ओवर हियर, दे हैव डन लाइक द सेम थिंग. वो सेम जो आपको मैंने टेबल दिखाया था ना ऊपर, उसी का ग्रुप बनाया गया है, इसी टेबल का. ठीक है, तो हमारे पास टेबल में मैक्सिमम और मिनिमम आ गई थी 54 35, माइनस किया है तो मेरे पास रेंज आ गई. तो हम यहाँ निकालते हैं, सबसे पहले हाइट निकालते हैं, राइट? हाइट, या जिसे आप विड्थ कह लें, आप मैं वर्ड विड्थ यूज करूं या हाइट यूज करूं, इट्स द सेम थिंग. ओके, सो रिमेंबर आई यूज द वर्ड विड्थ और आई यूज द वर्ड हाइट, इट्स मीनिंग द सेम. वो क्या होती है? नोट डाउन दिस थिंग, नोट डाउन दिस थिंग. 35 से 38, count how many values are in 35 to 38 is 35, 36, 37, 38. कहाँ से कहाँ तक गए हम? अगर मेन टेबल में मेरे पास 35 लिखा होगा नंबर, मैं उसको भी इस वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी में डालूंगी, 35 में डालूंगी, राइट? यहाँ नोट डाउन करूंगी, 36 को भी इधर करूंगी, 37 को भी, 38 को भी. सो 35 से 38 कितने नंबर्स बने? डोंट डू 38 माइनस 35, वो तो आपके पास 3 बनेंगे, बट आई एम इंक्लूडिंग 35 एज वेल. तो 35, 36, 37, 38, दैट इज 4 वैल्यूज. दैट इज अ हाइट, दैट इज अ विड्थ ऑफ द फर्स्ट क्लास. ये पहली क्लास है. दूसरी क्लास में आते हैं. दूसरी क्लास में 39, 40, 41, 42. हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर? 4. सबकी 4 4 आ रही हैं, चेक करें. ठीक है, और हाउ मेनी क्लासेस आर हियर? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, या 5 क्लासेस. अब इस फार्मूले पे आ जाओ. ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर आपने जितनी क्लासेस बनानी है, ये यहाँ पे हम खुद से ले लिया, या आपको सवाल में गिवन होगा कि मेक 5 क्लासेस, ठीक है, या हम खुद से ले रहे हैं अगर कि हम जी 5 क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज़ द फार्मूला? वी विल डू रेंज. रेंज क्या था? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा. अगर ये डेसिमल्स में आ रहा है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट नंबर के. ऐसे ही है ना? ठीक है, जिससे 3.8 हमने 4 कर लिया. पहला नंबर 35 लिखा, 35 से आगे काउंट करेंगे 36, 37, 38, यानी 35 को इंक्लूड करेंगे, 35, 36, 37, 38. तो 38 पे मैंने एंड कर लिया. फिर अगला 39 से शुरू करूँगी, 39, 40, 41, 42, 42 पे एंड कर लिया. फिर 43 से शुरू किया, 43, 44, 45, 46, 46 पे एंड कर लिया. इस तरह से मेरे पास, अगर अब एट द एंड मैं 54 पे रुक गई, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है? 54 है. 54 से आगे तो मेरे पास है ही नहीं ना टेबल में वैल्यूज. मैं 54 पे रुक गई. तो मैंने कितनी क्लासेस बना ली हैं? 1 2 3 4 5 क्लासेस बना ली हैं. ऑलराइट, गॉट इट. तो इस तरह से हम सिंपल डेटा को
ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। अभी यहाँ तक एक सिंपल टेबल गिवन है, सिंपल टेबल से ये अनग्रुप डेटा कैसे बनता है, अनग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, और ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? Yes, Sadaf, what do you want to ask? Okay, Sadaf, you want to say मैम something? यस मैम। मैम ये क्लास इंटरवल जो हमने बनाए 4 4 उसके 35 36 37 एंड 38 काउंट कर रहे हैं, ये मैम किस तरह लिए हैं हमने क्लास इंटरवल, लाइक किस लॉजिक से बनाया हमने? ये किस तरह से बनाए ये पूछ रही हैं आप? जी मैम, कि मतलब क्यों इस तरह से 4 4 लिए हैं? नहीं, ये 4 4 इस तरह से आए हैं कि हमने खुद से सोचा है कि मुझे पूरा डेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ आपने खुद से सोचा, ये 5 खुद से लिखा है, ठीक है ना। ओके मैम। इसने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो लाइन पढ़ो। एज जनरल रूल, नंबर ऑफ क्लासेस शुड lie between 5 to 15. ओके Right, मैम। actual number of classes depends on the size of data, therefore we can select the classes by our own choice. तो हमने कहा कि हम जी 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं, तो अगर 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं, मैंने रेंज डिवाइड बाई 5 किया, तो आंसर के 3.8, यानी कि हर क्लास की जो हाइट होनी चाहिए, हाइट यानी कि विड्थ, और विड्थ और हाइट का मैंने मतलब बता दिया। इसका मतलब होता है हम कितने नंबर्स के अंदर ऐड अप कर रहे हैं, कितने काउंट कर रहे हैं, वो 3.8 नंबर हो। अब सवाल होता है 3.8 नंबर्स क्या होते हैं, या तो 3 नंबर्स होंगे, या 4 नंबर होंगे, या 5 नंबर होंगे, या 6 नंबर होंगे। 3.8 क्या होता है, तो हमने क्या किया, उस डेसिमल को, आंसर जो है उसको हमने राउंड कर दिया नेक्स्ट पे 4 पे, तो हमारे पास यहाँ 4 वैल्यूज का इंटरवल आ गया। समझ आई बात? अब यस मैम। यहाँ पे एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने भी आपसे कहा कि नंबर ऑफ क्लासेस, हमने कहा कि हम 5 चाहते हैं, हमने 5 ले लिया। आप क्या, नहीं नहीं मिस, मैं तो यहाँ पे ना 6 चाहती हूँ कि 6 की क्लास हो, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो। तो 6 क्लासेस के लिए व्हाट यू कैन डू, यू विल डू 19 डिवाइड बाई 6। 19 डिवाइड बाई 6 का क्या आंसर आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 ज़ा 18 होता है ना, 3.1 कुछ ऐसे आ जाएगा। सही है, तो 3.1 या जो भी आ जाएगा। तो अब हमें क्लासेस कैसे, 3.1 है ना, तो मैं इसको राउंड टू नियरेस्ट नंबर 3 कर लूँगी। तो अब ज़रा मैं बना के देखती हूँ कि बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं 3 3 की क्लासेस। तो ये मेरी हो जाएगी 35 से 35 36 37, ये पहली क्लास हो गई। ठीक है, 38 39 40, फिर 41 42 43, फिर 44 45 46, फिर 47 48 49, राइट। मैंने 54 तक जाना है। 49 के बाद अब मैं किससे शुरू करूँगी, 50 से। 50 51 50 51 52 और 53 54, लेकिन चूंकि 3 3 का गैप आ रहा है, तो मैं एंड किस पे करूँगी, 55 पे। नो डाउट कि मेरे पास 55 का कोई नंबर का फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट्स ओके, लेकिन मैं एंड 55 पे करूँ। अब कितनी क्लासेस बन गई हैं, कितनी आनी चाहिए थी, मैंने क्या कहा था, आई वॉन्ट हाउ मेनी क्लासेस, 6 ना, मैं 19 डिवाइड बाई 6 किया था, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 क्लासेस हो गई हैं, क्योंकि मैं 3.1 को राउंड कर दिया था 3 पे। अगर मैं 3.1 को राउंड कर देती, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 7, हाँ। तो आपका एग्जैक्ट कभी कभार वो नहीं आता है, तो ये होता है क्योंकि हम जो हैं वहाँ तक जा रहे हैं। मैंने 55 लिखा है, नंबर 54 पे ख़त्म हो रहा है, तो इट्स फाइन। तो हमारी क्लासेस उसके दरमियान एग्जैक्ट ये नंबर ऐसा था 55
पे कि हमारा एग्जैक्ट आ गया। कभी कभार उस नंबर से अगर मैं 6 चाह रही हूँ तो हो सकता है 6 से ऊपर बन जाए या 6 ही बन जाए, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर है। एक्चुअली यहाँ वो क्या रहा है, यहाँ इज्यूम किया जा रहा है। ये जैसे मेरा आंसर थोड़ा सा गलत आया ना, मैंने इसको 19 डिवाइड बाई 6 किया, राइट। मैं अभी कर क्या रही थी, मैंने यहाँ पे यही वाला समझ लो फार्मूला लगाया, तो मैंने किया था 19 डिवाइडेड बाई 6 विच गिव्स मी आंसर 3 पॉइंट समथिंग, मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली कह दिया कि वो 3 के बराबर है। मैंने 3 का गैप से बढ़ गई, ऐसे ही मैंने किया। तो मेरे पास 6 नहीं आई, 7 आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी वो 3.1 आगे था। अगर एग्जैक्टली थ्री होता तो मेरे पास 6 आती क्लासेस, लेकिन चूंकि यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इसलिए मेरे पास 6 से थोड़ी बड़ी क्लासेस आएंगी। तो 3 से बड़ी क्लासेस क्या आ गई, 7 आ गई। ऐसे ही है, ठीक है, 7 हो गई ना। अच्छा, बता क्या रही थी, मेरे माइंड से निकल ना जाए, कि यहाँ हमने ज्यूम किया कि जी हमें 5 क्लासेस चाहिए, हमें 6 क्लासेस चाहिए, वी आर जस्ट ज्यूमिंग। एक्चुअली इसका भी एक फार्मूला होता है, राइट, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस रेंज के डेटे पे, रेंज कितनी आ रही है 19, इस रेंज के डेटा पे हमारी कितनी क्लासेस बननी चाहिए, ठीक है। और जब हमें कितनी क्लासेस पता चल जाता है तो हमारे पास फिर दिस डिवाइड बाय क्लासेस करके हाइट आ जाती है। अब वो फार्मूला मेरे माइंड से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, वो थोड़ा सा ये है, और चूंकि कॉम्प्लिकेटेड सा इसलिए उन्होंने उड़ा दिया है कि आपके लेवल पे आप खुद से सोच लो भाई मुझे 5 क्लासेस चाहिए, 6 चाहिए। वो कुछ ऐसे बनता है 3.3 प्लस लॉग ऑफ योर ये जो रेंज आ रही है ना, लॉग ऑफ कुछ रेंज, उस तरह से कुछ फार्मूला था, ठीक है। मैं देख लूँगी बुक में, सारी बातें आप सारा वक्त यूज़ तो नहीं कर रहे होते कि आपको याद हो। चूँकि इसमें लॉग भी आ रहा है 3.3, वो ज़रा आपके लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स वाई रादर गोइंग टू दिस फार्मूला। उन्होंने मतलब हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं, इस फार्मूले का आंसर हम इधर लिखते हैं, और फिर जब हम रेंज डिवाइड बाय दिस आंसर करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली आ जाता है कि क्या मोस्ट सुटेबल हाइट होनी चाहिए इस डेटा के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन इस हैसल से बचने के लिए हम खुद से सोचते रहे कितनी क्लासेस हों। अब आपके जहन में सबसे पहला सवाल हमेशा आता है कि हम क्या करेंगे पेपर में, एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली वो आपको या तो देंगे, पेपर में दिया जाएगा कि यूज़ 5 क्लासेस और 6 क्लासेस, या फिर अगर नहीं दिया जा रहा है तो कोई बच्चा 5 से भी कर सकता है, कोई 6 से भी कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम कह दें कोई किसी से भी कर ले, हम कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे, तो डेफिनेटली पेपर में मेंशन होगा कि कितनी क्लासेस आपने लेनी है। ठीक हो गई बात यहाँ तक, राइट? ओके, सो ये आपको अभी मैंने सिखाया हाउ टू मेक अ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अच्छा, मैंने अभी एक बात बोली थी विच आई एम गोइंग टू यूज़ इट लेटर ऑन, कि वाई वी नीड टू मेक दिस ग्रुप डेटा। अभी जो इस शीट में जो कुछ मैं चाह रही हूँ वो कवर आपके साथ पहले कर लूँ मैं, और इसमें हम आगे आते हैं। तो अब आगे इम्पोर्टेंट दूसरी बात आ जाती है कि हमने ग्रुपिंग तो कर ली, अब ग्रुपिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ जो मैंने ग्रुपिंग की है, कैन यू नोट डाउन ओवर हेयर, ज़रा गौर से सुनिएगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग डू रेज योर हैंड एंड आस्क मी, राइट, क्योंकि अब हर चीज़ आगे से कनेक्टेड है। आज की चीज़ नहीं समझेंगे तो आगे का कोई लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। व्हेन आई मेक दिस लिमिट क्लासेस 35, 36, 37, 38 सो ऑन। अब इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिए चार के क्लासेस बना के, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास जो मैंने विड्थ या हाइट में बोल रही थी, विड्थ या हाइट क्या आ रही है? 5। हाँ, 35, 36, 37, 38, 39, 5 आ रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी 5 आ रही है। यहाँ मैं लिख देती हूँ W, यानी ये विड्थ है, ठीक है। अटेंडेंस ले लें, अभी मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 30 यानी 29 स्टूडेंट्स हैं। तो सारे पहले वाले हैं, कोई और नया आ गया तो भी बता दें।
ओके 40 से 44 कितना आ रहा है, ये भी 5 है 44 तक, लेकिन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 40, तो 40 41 42 43 44, पाँच पाँच आ रहा है। अच्छा जनाब, अब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बात बतानी थी वो ये बतानी है कि कैन यू सी दैट ये क्लासेस हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास एंड द फोर्थ क्लास, but in these classes the ending value of the first class and the starting value of the second class has a gap in it. This is ending on 39 and it's starting on 40, right? It's ending on 44 and starting on 45. जवेरिया का भी नोट डाउन कर लिएगा रोल नंबर। ओके तो ये जो है जब गैप आ रहा होता है स्टार्टिंग एंडिंग में और स्टार्टिंग में, किसकी एंडिंग में, किसी भी क्लास की एंड में और उससे नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में, क्लास के एंड में नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में गैप आ रहा है ना वन वन वैल्यू का। क्या मतलब है वन वैल्यू का गैप? अगर आपके पास डेटा में 40 की वैल्यू मौजूद है, आप उसको इस क्लास में डाल देंगे, 41 होगी तो इसमें डाल देंगे, 44 होगी तो इसमें डाल देंगे, 45 होगी तो इस वाली में डालेंगे। But what about if you have a value 44.3? Where you are going to place it? This is ending on 44 and this is starting from 45. There is no position where you can place the value 44.3, 44.4, so on. So याद रखें when there is a gap that is known as class limits. Interval लिखा हुआ है इसने, इसका proper नाम है और वो है class limits, right? LIMITS limits. तो ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं जब गैप हो। ओके एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय गैप, नाउ दैट गैप थिंग इज क्लियर, व्हाट आई एम कॉलिंग गैप। गैप में किसको कह रही हूँ, गैप में इसको कह रही हूँ कि जहाँ ये एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट, दैट इज अ गैप। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ माई क्लासेस आर समथिंग लाइक दिस, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, note down. Nothing is in decimal, but the ending point and the starting point is same. Ending point and the starting point is same, right? So when they are same, they are known as the boundary. They are the class boundaries. They are the class limits and they are the class boundaries. जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जहाँ पे फर्स्ट क्लास ख़त्म हो रही है वहीं पे सेकेंड क्लास की वैल्यू शुरू हो रही है। सो दे आर द क्लास बाउंड्रीज एंड दे आर द क्लास लिमिट्स। 35, listen to me carefully, okay, and keep your eyes over here. 35, 40, 45, 50. This left hand side, the red one, is known as lower limits. Lower limits of each class, and 39, 44, 49, 54 are known as upper limits of each class. Upper limits. 35, 40, 45, 50 are the lower boundaries of each class. 40, 45, 50, 55 are the upper boundaries of each class. ये तो मैंने आपको अलग से एग्जाम्पल बताए। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, दीज आर द अपर बाउंड्रीज ऑफ दीज लिमिट्स। ये कैसे आ गई भाई, हाउ दैट कम, व्हाट इज अ वे टू गेट द बाउंड्रीज if the limits are given to you? Check the difference. What's the difference over here? The difference is 1. What's the difference? 1. You use the formula, it's difference divided by 2. It's always difference. When I'm using the word difference, that means the value where the one class ends and the other class begins. तो ये यहाँ गैप कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। 44 से 45 यानी 45 माइनस 44 इज 1, 50 माइनस 49 1, तो इस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो क्या आंसर आया, 0.5। सो 0.5 we have to subtract from the lower limit
0.5 we have to minus, subtract means minus from the lower limit, and 0.5 I have to add in the upper limits. Let's do quickly with me क्योंकि 4 minutes रह गए हैं और उसके बाद वैसे भी 5 मिनट की क्लास एंड हो जाएगी, तो मैं आपको अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगी. लेट्स डू 35 में से 0.5 माइनस करो. ठीक है, 0.5 कैसे आया है? 0.5 यहाँ से आया. इट्स 1 डिवाइडेड बाय 2, so the answer is 0.5. ठीक है, the answer is 0.5. All right, so do it from all this minus 0.5. 35 minus 0.5 is 34.5. 40 माइनस 0.5 इज 39.5. देख लिया, यही आ गया आपके पास. और अपर लिमिट्स में हमने क्या करना है? वी हैव टू ऐड 0.5, so I will get the upper boundaries. So through this process I can match this thing. The ending and the starting is same, ending and the starting is same, right? Got it? ये बात क्लियर हो गई है कि how to convert limits into boundaries. And the second question might come in your mind कि now what about the value if it is in the table? आपके पास एक टेबल है जिसमें वैल्यू है 39.5, ये 39.4 है, तो 39.4 तो you will place over here. But if the value is 39.5, am I going to place 39.5 here or am I going to place 39.5 here? So for that we fix the thing. It's from person to person, but for examination we are going to fix it कि either you have to include the upper limit or upper boundary, or you have to include the lower boundary. You cannot include both at the same time. या तो आप इसको करोगे या फिर इसको करोगे. ठीक है, यानी यूं कह लें आप, either you will go for this thing 34 whatever is this is, and then the one is this sign, and then I will write here x, and then I will write less than equal to sign and some number over there, right? So 30 39 whatever is here. So if I'm writing like this, that means that this upper boundary is included but the lower boundary is not included. Any number just after the lower boundary, like अगर मैं 39.51 की बात कर लूँ, 39.51 that is a part of that. ठीक है ना, लेकिन 39.5 इधर नहीं आएगा. 39.5 किस में मैं इंक्लूड करूँगी? इसमें करूँगी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल इंक्लूड इन द अपर बाउंड्री, एंड मेजॉरिटी द क्वेश्चन वी इंक्लूड इन द अपर बाउंड्री. ठीक है, डन सो फार. फ्रीक्वेंसीज आपको निकालने आता है, फ्रीक्वेंसीज वहीं से आपने लिख के लिख दिया है. मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत आसान है. मिड पॉइंट इज सिंपली इट्स अपर बाउंड्री. okay, I should write in capital, upper boundary plus lower boundary and divided by 2. All right, or you can also go for, और लिख दूँ यहाँ, आप चाहें तो इसको ए भी कर सकते हैं. इट्स लोअर लिमिट but in the bracket, lower limit plus the upper limit and divided by 2. That will give you the same answer. Lower limit and the upper limit divided by 2 give you the same answer. So just check it out. If I do 35 plus 39 divided by 2, मेरे पास 37 आएगा, या मैं 34.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लूँ तो मेरे पास भी 37 ही आएगा. आई कैन गो फॉर एनी ऑफ द फार्मूलाज. ऑल राइट, so far it's only 1 minute left. I hope नूर मरियम आपने अटेंडेंस ले ली होगी अभी वाले स्लॉट की भी. ठीक है, मुझे भेज दिएगा. I have now 29 people over here. So far I have explained you what I mean by group data, ungroup data, class intervals. Class intervals are, ये भी class intervals हैं और ये भी class intervals हैं, लेकिन इस class interval को हम बोलते हैं class limits. ये class limits हैं क्योंकि gap आ रहे हैं. class boundaries because there is no gap over there, and this is how to find out midpoint. All right, till that you have to revise it properly, और next class में